محمد وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه. دس پر تشریف فرما عمائدین شہر، علماء کرام، شعراء اعظام، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے سامعین کرام، مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو رخ ہیں، ایک نظمی رخ ہے تو ایک نثری رخ ہے. تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے کنوینر عالی جناب مولانا اعجاز صدیقی صاحب مدد اللہ العالی، انہوں نے مدحت رسول میں جہاں نظمی کلام کا انتظام فرمایا، وہیں نثری کچھ کلام کہنے کے لیے بھی کچھ حضرات کو مدعو کیا ہے. اس میں میں آپ کے درمیان میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. بات دراصل یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں، زندگی کے ہر شعبے پر اور زندگی کے مختلف گوشوں پر اور زندگی گزارنے والی انسانیت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے. قرآن مجید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے بکھرا ہوا ہے. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ اما جان نے بہترین اور خوبصورت جواب دیا، کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ قرآن مجید کے ہر صفحے پر، ہر سطر پر، ہر آیت پر، ہر کلمے پر، ہر حرف پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حسن بھرا پڑا. قرآن نے آپ کی جو تعریف فرمائی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ آپ اونچے اخلاق پر فائز ہیں. قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ کے اندر اخلاق ہیں، آپ کے اندر اونچے اخلاق ہیں، یہ نہیں کہہ رہا قرآن. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب آپ اونچے اخلاق پر فائز ہیں. اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے، علماء جانتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب اخلاق بھی کیا چیز ہے؟ اخلاق آپ کے قدموں تلے ہے، آپ اخلاق کے اوپر. تو اس اعتبار سے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعراء کرام کے طبقے پر بھی بڑا احسان فرمایا. مسجد نبوی میں شاعری کی مجلس کو خود حضور نے آراستہ پیراستہ کیا. حضرت حسان بن ثابت جو اس وقت کے شاعر رسول، مداح رسول، نعت رسول میں بہت اونچا مقام پایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، حسان اشعار کہتے جاؤ، آسمان سے اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا ہے، وہ تمہارے اشعار کی تائید کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اشعار سنائے ہیں وہیں شعراء کی دل جوئی بھی فرمائی. یاد آتا ہے میدان احد کا وہ منظر جب صحابہ کرام کے قتال کی صفوں میں انتشار ہوا، بکھرنے لگی، آپ نے بلا تکلف، بلا قصد و ارادہ ایسا موضوع کلام ارشاد فرمایا، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب. اور جب آپ کے دست مبارک پر پتھر لگا تو آپ کی انگلی زخمی ہوئی، تب بھی آپ نے شعر فرمایا، وَهَلْ أَنْتِ إِلَّا أُصْبُعٍ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعراء کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا،
अशअरु कलिमतिन क़ालहुल अरब अला कुल्लु शैइन मा सिवल्लाहि बातिलु व कुल्लु नईमिन ला मुहालत ज़ाइलु। सहाबी रसूल कहते हैं पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र में था, अल्लाह के नबी को शेर सुनाने लगा, आपने फरमाया ही और कहो, ही और कहो, हत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैंने 100 अशार सुनाए। सरकार हर शेर सुनते थे और खुशी का इजहार फरमाते थे। आज वो ज़ात गिरामी के नाम नामी आज मुशायरे की ये मजलिस संवारी गई है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमारे बैठने सुनने को कबूल फरमाए और जो पैगाम अशार की शक्ल में दिया जा रहा है अल्लाह उस पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह मौजूद सामीन, एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज दे के हज़रत हमसे रुखसत हुए। मैं हज़रत उस्तादुल असातिज़ा जनाब मुफ्ती तजम्मुल हुसैन साहब की शालपोशी के लिए हमारे इलाके के एमएलए साहब जनाब अहमद बलाला साहब से ख्वाहिश है कि मुफ्ती साहब की शालपोशी फरमाए और ममिट पेश करें। इसी तरीके से हमारे दरमियान हज़रत मौलाना मोहतरम यूसुफ ज़ाहिद साहब दामद बरकातुहुम भी तशरीफ़ फरमा है। हम तमाम आपका तहे दिल से इस्तक़बाल फरमाते हैं। अता करें। माशाअल्लाह मौजूद सामीन, और लगे हाथ में ये चाहता हूँ कि हमारे जो विधायक जी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं उनका भी इस्तकबाल मुफ्ती साहब के हाथों कर दिया जाए ताकि कर्ज बाकी न रहे, फ़ौरन अदा कर दिया जाए। जी 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 तशरीफ़ लाएँ। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये सिपाही पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस फराख दिली के साथ दिखता है माशाअल्लाह वो आज यहाँ देखने को मिला है। अहमद बलाला साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह ताला इन्हें खूब खुश रखे और कौम के काम को इस तरह से अंजाम दे कि इंशाअल्लाह सिर्फ विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा तक जाए, ये मेरी दुआ है इंशाअल्लाह महफिल रसूल की बरकत से। मुझे एक शेर याद आ रहे हैं। अहमद साहब तशरीफ रख ले। मैं आप जी अहमद शायर देखे मेरे दोस्तों, शायर की जो कुव्वत परवाज है वो कितनी है। शायर ही एक ऐसी जात है जो कब्र में चली जाती है बाआसानी और निकल भी आती है। इनके फिक्र, इनके तसव्वुरात 100 साल पहले की बात शायर शेर में कह जाता है। ये अल्लाह की तरफ से इल्का है, इल्हाम है, ये हकीकत है मेरे दोस्तों। आप ये देखें कि तमाम शोरा हजरात, अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले जो बातें कही आज वो बात सादिक आ रही है कि लग रहा है आज के लिए कहा। ये शोरा हजरात वो है जमशेद जौहर साहब ने कहा था कि इल्हाम है खुदा का, खूबी नहीं ये मेरी, लगता तो है बज़ाहिर जौहर की शायरी है। तो देखे मेरे दोस्तों, मैं एक शेर अहमद भाई आपको नजर करना चाहता हूँ, नाते रसूल के, वो भी लफ्ज़ अहमद पे तवज्जो दीजिएगा और शायर की कुव्वत परवाज देखिएगा कि फूस का छप्पर था यूं तो हर बशर के सामने। चौथे मिसरे पे अगर आप मचलने पे मजबूर ना हुए तो मैं 110% समझूंगा कि मैं हैदराबाद में नहीं हूं। मुझसे गलती हुई है, मैं कहीं और उतर गया। देखिएगा, अता करें। फूस का छप्पर था यूं तो हर बशर के सामने, फिर भी काबा झुक गया था उनके घर के सामने। वाह 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 वाह। छप्पर था यूं तो हर बशर के सामने, फिर भी काबा झुक गया था उनके घर के सामने। अरे नामे अहमद में जबर खालिक ने रखा इसलिए जेर हो जाए जमाना इस जबर के सामने। जबर खालिक ने रखा। सुभान अल्लाह। शुक्रिया हैदराबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप
आप हैदराबाद में ही उतरे हैं। वाह 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 वाह। अब लगा मैं हैदराबाद आया, अब लगा सिकंदराबाद आया। माशाअल्लाह। वाह। नाम अहमद में जबर 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 खालिक ने रखा इसलिए जेर हो जाए जमाना इस जबर के सामने। वाह। हमारे चचा गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शुक्रिया जज़ाक। माशाअल्लाह। ये हमारे उस्ताद शायर कारी अब्दुल बातिन फैजी साहब चचाए मोहतरम, जो मेरे कबीले से, जैसे मैं हूँ वैसे वो, माशाअल्लाह। लेकिन अब याद आया दुनिया के अंदर, जब मैं अपने गांव की बात बताऊं, मेरे बस्ती की बात बता रहा हूं कि जब मैं, बहुत सारे लोग होंगे मेरे इलाके के, जब चलता था तो मेरे घर वालों से मेरी वालदा ने कहा कि बड़ा वाला जो लड़का है लंगड़ा है बेचारा, क्या कर पाएगा, बहुत माजूर है। वालदा मेरी कहती थी मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसी बच्चे को इस तरह से संवारूंगी, मदरसे में पढ़ाऊंगी और कोशिश करूंगी कि अकाबिरीन की खिदमत के लिए इसे मैं स्टेज पे छोड़ दूं। मुमकिन है ये बच्चा आगे चमक सकता है, शायद माँ की दुआओं का समरा हो सकता है, असतज़ा की दुआओं का। तब मुझे एक शेर, मेरे अंदर का मुजाहिद, अंदर का अपाहिज कुछ बोलता है और शेर ये कहता है कि ये निकाबत, ये निकाबत, ये निजामत कहाँ मिलती यारो। शेर देखिएगा हज़रत, ये निकाबत, ये निजामत कहाँ मिलती यारो, इतने लोगों की मोहब्बत कहाँ मिलती यारो। वाह। अगर शेर देखिएगा, ये निकाबत, ये निजामत कहाँ मिलती यारो, इतने लोगों की मोहब्बत कहाँ मिलती यारो। अरे महफिले नात का सदका है ये सब कुछ वरना, महफिले नात का सदका है ये सब कुछ वरना, इस अपाहिज को ये इज्जत कहाँ मिलती है। वाह 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 वाह। का सदका है ये सब कुछ वरना, महफिले नात का सदका है ये सब कुछ वरना, इस अपाहिज को ये इज्जत कहाँ मिलती यारो। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत करम नवाजिश। ग्रीनविल हाई स्कूल हमारे स्कूल में आने वाले तमाम तलबा को मेयारी व मौसर तालीम देना चाहते हैं। असरी तालीम के साथ दीनी तालीम व तरबियत से भी रोशनास करना चाहते हैं, ताकि तलबा इस इस्लामी माहौल में तालीम व तरबियत पाकर बहैसियत मुसलमान माशरे में अपना अच्छा किरदार अदा कर सके और मखलूक खुदा के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मुकम्मल तालीम का निज़ाम जिसकी बदौलत तलबा दीनी व असरी तालीम एक ही जगह हासिल कर सके। रिमीडियल क्लासेस का एहतमाम रहेगा। माहिर और तजुर्बेकार उस्ताद के जरिए तलबा पर इनफरादी तवज्जो दी जाती है। तलबा की बेहतरीन तालीम के सिलसिले में वालिदैन के लिए इजलास मुनक्कदा किए जाते हैं। वक्तन फवक्तन कैरियर गाइडेंस सेशन का एहतमाम। मदारिस के नहज पर तजवीज के साथ कुरान मजीद का नाज़िरा और ज़रूरियात दीन से वाकिफियत कराई जाती है। लाइब्रेरी का इंतज़ाम ताकि तलबा में मुताल्ले का शौक़ पैदा हो। कंप्यूटर क्लासेस का इंतज़ाम, चौथी क्लास से कोडिंग भी सिखाई जाती है। तलबात के लिए मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, अच्छी सेहत बनाने से मुताल्लिक़ प्रोग्राम्स, वालिदैन के लिए बच्चों की तरबियत से मुताल्लिक़ माहाना प्रोग्राम्स। नोट, अच्छा पढ़ने वाले तलबात के लिए स्कॉलरशिप का इंतज़ाम, यतीम और ज़रूरतमंद हजरात के लिए भी स्कॉलरशिप का अहतमाम कराया जाएगा।